Minister Modi yesterday, while in Russia, reiterated that a Paris deal or no Paris deal, India will be committed to working against the effects of climate change. Good afternoon, ladies and gentlemen. First and foremost, please allow me to thank Prime Minister Modi for his presence here in Paris on the occasion of our working lunch and our meeting, and please allow me to thank his delegation as well for the very fruitful discussions we had. Prime Minister Modi has been visiting Europe, and I understand he will be traveling back to India later on today. In a few minutes, we will be going together through the Arc de Triomphe in order to revive the flame of the unknown soldier. Such was the wish of the Prime Minister, and please allow me to thank him for that, because it underlines the historical bond between our two countries. And this gives me an opportunity to commend the deep and constant commitment of India, which stood by our side, with so many Indian soldiers who died for our country, for its freedom. And it is very much the evidence of the strong bonds between our two countries, which we've been discussing at length on the occasion of our meeting. First and foremost, our commitment in favor of the fight against climate change. And please allow me to say once again that France is fully committed to fighting climate change, that France will continue to that end, not only within the framework of the Paris Accord, but also in all of the actions we are implementing. And we've had a chance to discuss this topic at length at the beginning of our sessions, and we're both convinced that our countries can do a lot for the environmental transition and in order to tackle climate change. To that effect, I will be traveling to India by the end of the year, and we will convene a meeting, an international meeting of the World Solar Alliance, to which many climate countries contribute in order to tackle climate change. We will take a number of concrete initiatives in favor of solar energy. We will commit our companies, innovate more, and there will be also other countries standing by us. We will continue as well with our own partnerships and intensify them in the field of renewable energy. We also had a chance to talk about everything which is part of our strategic dialogue. A meeting will be held by the end of June. The Minister of India in charge of the economy and defense will be in Paris as early as next week, and I myself, like I said, will be traveling to India by the end of the year. And in the meantime, the Minister of Foreign Affairs will be traveling to India. This partnership is a partnership in the industry, which we will strengthen in the field of civil nuclear energy, transport, trade as well. It is also an industrial and military partnership with some very concrete successes, including the Rafale, and we very much are eager to continue with a number of projects we will continue to implement by your side. And this both enables us to share French excellency or technology, and also it is a chance to support and implement the project Make in India of Prime Minister Modi. Our partnership is also about tackling terrorism, and we discussed this crucial topic at length. We are committed in the fight against terror, but it comes under different the cooperation. Terrorism, is striking both our countries in different way, but we will continue to work in the field of defense cooperation, maritime security, intelligence as well, and by fighting the spread of terrorism on the internet as well. I am working for the G20 to deal with that matter, and will make a number of concrete decisions by the end of the year. Lastly, I would like India to continue to stand by us in all forms of the fight against all forms of terrorism, and similarly France will stood by India in that matter. Lastly, we talked about the necessity of
intensifying our relationship from a cultural point of view, academic and scientific cooperation as well. There is a real momentum between our two countries regarding the development of tourism and initiatives in the field of culture. But I would like us to do more. We need more Indian students coming to France and more French students going to India. This will be the generation to come, and beyond our own cultures and specificities, this generation will be in charge of implementing or working on our joint interests. From a cultural point of view as well, I very much would like to intensify our exchanges in the field of literature and the cinema, because it is incredibly lively and it is also an asset for both our countries, and we can do more in the field. France and India both share history and some common challenges, and our discussions today prove that on many of these topics, not only do we share some joint interests, but also a common vision. And in the coming months and years, we are aware of making sure that both our countries, when it comes to fighting terrorism or economic development, with both our interests, and when it comes to fighting climate change, we can work together, because this is our purpose, this is also our joint willingness. So please allow me to thank Prime Minister Modi once again for his visit, for these fruitful discussions, and let me tell you once again how much we're committed, both committed on all of these topics, including climate change, which we've discussed at length this week. Prime Minister. Thank you, Excellency. His Excellency President Emmanuel Macron, distinguished delegates, friends of the media, bonjour France, bonjour Paris. प्रेसिडेंट मैक्रो के साथ पहले एक बार मेरी टेलीफोन पे बात हुई थी उनके भव्य विजय के बाद, और उसके बाद इतने कम समय में और बहुत ही शॉर्ट नोटिस में मेरा यहाँ आना हुआ, और जिस गर्मजोशी से स्वागत किया, मैं इसके लिए राष्ट्रपति जी का हृदय से बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि नई सरकार को कि प्रारंभिक दिनों में कितने प्रकार की व्यस्तता रहती हैं, उसके बावजूद भी भारत को उन्होंने प्राथमिकता दी, और इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। जर्मनी का शायद ये चुनाव था, फ्रांस का शायद ये चुनाव था कि जिसके ऊपर पूरे विश्व की नज़र थी, और ये सिर्फ चुनाव हार जीत का नहीं, एक नई परंपरा, नया नेतृत्व, नई ऊर्जा, नया व्यक्तित्व, हर प्रकार से सबका ध्यान था, और ऐसे समय आपका विजय हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन के पात्र हैं। फ्रांस और भारत के द्विपक्षीय संबंध बहुत ही गहरे हैं, हर क्षेत्र में हैं, हम मिलजुल कर के काम करते हैं। वैश्विक संदर्भ में भी हमारे संबंध सिर्फ हमारे दो देशों के हितों के लिए तक सीमित नहीं हैं, वैश्विक संदर्भ में हम दो देशों के संबंध किस प्रकार से मानवजात को उपकारक हो, मानवीय मूल्यों को उपकारक हो, इसकी हमारी एक सफल यात्रा रही है, और राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में भी ये यात्रा और तेज गति से आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। विकास का हमारा दायरा, संबंधों का हमारा दायरा एक बहुत बड़े फलक पर है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का मसला हो या ट्रेड की बात हो, चाहे वो इनोवेशन का विषय हो या इन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे एजुकेशन हो, एनर्जी हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, हर दृष्टि से। और जैसा अभी राष्ट्रपति जी ने बताया कि स्टूडेंट टू एक्सचेंज प्रोग्राम, स्टूडेंट के लिए इंटर्नशिप के कार्यक्रम, भारत को ज़्यादा समझने का प्रयास, भारत के नौजवानों को फ्रांस को समझने का प्रयास, इसको हम कैसे बल दें,
इस पर भी आज हमारी काफ़ी वास्ता हुई। और इसलिए मैं कहूँगा कि एजुकेशन हो, एनर्जी हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे डिफेंस का मामला हो या डेवलपमेंट का मामला हो, हमारे लिए दोनों फर्क का उतना ही महत्व है। चाहे हम स्मार्ट सिटीज के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो या हम स्पेस के प्रोग्राम में मिलजुल करके काम करना चाहते हो, हमारा दायरा कितना विस्तृत है इसका हम अंदाज कर सकते हैं। कम्युनिकेशन, जैसा आपने बताया कि कम्युनिकेशन वर्ड का इन दिनों में जितना उपयोग है, थ्रेड्स भी हैं, हम मिलजुल करके इस पर कैसे काम कर सकें। और उसी प्रकार से फ्रांस और भारत के कल्चरल रिलेशन एक हमारी साझी विरासत है। और आज जैसा राष्ट्रपति जी ने बताया, इसके बाद हम श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए जा रहे हैं। हिंदुस्तान के 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शांति के लिए शहीद हो गए, बलिदान दे दिया। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रपति जी भी समय निकाल करके हम दोनों साथ जा रहे हैं। ये भारत के उन वीर आत्माओं के लिए मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा आपका जेस्चर है। फ्रेंड्स, पेरिस मेरी राजनीतिक यात्रा में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है। फ्रांस के साथ भारत ने और व्यक्तिगत रूप से मैंने खास करके क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में, पेरिस एग्रीमेंट के संदर्भ में जिस तरह कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया, और मैं समझता हूं कि पेरिस एग्रीमेंट ये एक साझी विरासत है, ये और विश्व की साझी विरासत है। इस पीढ़ी की ये ऐसी देन है जो भावी पीढ़ी की भी विरासत बनने की लिए एक नई आशा को जन्म देती है। यह केवल पर्यावरण सुरक्षा का मामला नहीं है, लेकिन हम सबकी मदर अर्थ को बचाने की एक साझी जिम्मेवारी है, हमारा कर्तव्य है। मेरे लिए, हम भारतवासियों के लिए प्रकृति का संरक्षण, संवर्धन, पर्यावरण की रक्षा ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। और इसका मूलभूत कारण है कि जो हमें सदियों से शिक्षा मिली है, और वो हमारी वेद काल से शिक्षा है कि प्रकृति के साथ सहजीवन हमें सीखना होगा, प्रकृति के साथ संवाद, सहमति, यही अल्टीमेटली हर किसी का कल्याण करेगी। और इसलिए हम प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के प्रति संस्कारों से, संस्कृति से, स्वभाव से पूरी तरह कमिटेड देशवासी रहे हैं। और भावी पीढ़ी को आज हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बचा के रखा, इसके कारण मिला है। हमारा भी दायित्व बनता है कि हमारी भावी पीढ़ी के लिए शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए देना, ये हम लोगों की दायित्व है। और इसलिए हमारा ये प्रण है, हम समझौते के साथ भी हैं और समझौते के बाद भी हम मिलकर के चलेंगे, मिलकर के करेंगे और भावी पीढ़ी को मिलकर के कुछ न कुछ तोहफा देकर के जाएंगे, इस कमिटमेंट के साथ। और इस दिशा में
हमने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इंडो फ्रेंच पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी पर विचार हुआ है। सीईओ फोरम को सस्टेनेबल इकोनॉमी के विषय पर विचार करने का निर्देश दिया है और पेरिस की धरती पर एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, और मुझे खुशी हुई कि राष्ट्रपति जी की इंटरनेशनल सोलर अलायंस के इस उपक्रम को आगे बढ़ाने के पीछे उनका एक कमिटमेंट है और वो स्वयं मुझे पूछ रहे थे कि बताइए हम कैसे आगे बढ़ेंगे। मैं समझता हूँ कि अपने आप में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उज्जवल भविष्य मैं देख रहा हूँ, क्योंकि फ्रांस और भारत ने मिलकर के ही इस कल्पना को जन्म दिया और आदरणीय राष्ट्रपति जी इसको आगे बढ़ाने के लिए कृतनिश्चयी हैं और उनके नेतृत्व में इस बात को हम सफलता को प्राप्त करेंगे। मानवता के सामने दो बड़े खतरे हैं। एक की जैसे मैंने चर्चा की, क्लाइमेट, बहुत लोग उसको देख नहीं पाते हैं, इनविजिबल है कुछ लोगों के लिए। दूसरा है आतंकवाद। आतंकवाद को हम देख पाते हैं, आतंकवाद को हम अनुभव कर पाते हैं, आतंकवाद की भयानकता हम सुन पाते हैं। आतंकवाद के कारण बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, निर्दोष लोग मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। फ्रांस का हर बच्चा भली भांति आतंकवाद की भयानकता को समझता है, अनुभव की है। आज विश्व का बहुत सारा हिस्सा इस संकट से गुजर रहा है। आज हमने बड़े विस्तार से इस विषय की चर्चा की है कि आतंकवाद से बचने के रास्ते क्या होंगे, टेक्नोलॉजी का उसमें जिस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है उस पर हम सतर्कता कैसे बरतें, साथ मिलकर के कैसे काम करें, रेडिकलाइजेशन के सामने डी रेडिकलाइजेशन की मूवमेंट को हम कैसे बल दें और विश्व शांति और सद्भावना की दृष्टि से कैसे आगे बढ़े, उस दिशा में हमने चर्चा की है। भारत की हमेशा सोच रही है यूरोपियन एकता के संबंध में, यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन, प्रगतिशील यूरोपियन यूनियन, सशक्त यूरोपियन यूनियन, इसके हम पक्षकार रहे हैं और मैं चाहूँगा कि फ्रांस की ऊर्जावान, विजनरी, यंग नेतृत्व न सिर्फ फ्रांस को लेकिन यूरोपियन यूनियन को भी एक नई ताकत देने के लिए अपना योगदान जरूर देगा। एक सफल यूरोपियन यूनियन, ताकतवर यूरोपियन यूनियन, प्रगतिशील यूरोपियन यूनियन जो वैश्विक संतुलन के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। मुझे आशा है कि उस दिशा में फ्रांस सफलतापूर्वक अपनी भूमिका निभाएगा। मेरे लिए खुशी की बात है कि राष्ट्रपति जी ने भारत आने के मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया है। हम उनके स्वागत के लिए बहुत उत्सुक हैं। मैं फिर एक बार उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, फ्रांस की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और मानवता के सामने जो संकट है, चाहे वो क्लाइमेट का हो, चाहे आतंकवाद का हो, हम दोनों देश मिल करके इस मानवता के काम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.